Hello and welcome back to the 12th session of Macroeconomics, Chapter 12 Balance of Payment. In our last session, we had discussed two topics. Number one, autonomous and accommodating transactions, and the disequilibrium in balance of payment. Disequilibrium in balance of payment was the last topic. So actually we have finished the chapter. In today's session we are going to discuss the whole chapter in short so that you can understand the chapter quickly and easily. Let's start with the definition. Balance of payment is an accounting statement that provides systematic record of all economic transaction. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सब रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं किन दोनों के बीच में, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ट्रांजैक्शन हो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, वो सब ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट एक अकाउंट बना के मेंटेन करती है, उस अकाउंट को कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Now our next topic is, what are the economic transactions which are mentioned in the balance of payment. Okay. 5 different types of transactions are mentioned in balance of payment, or you can say the transactions which are mentioned in balance of payment are classified into 5 categories. Let's start with the first one, that is visible items. Import and exports of goods, that which you can see, touch, or it is in the physical form. Second is invisible items. Here we are talking about services. The third is unilateral transfer. Fourth, income from investment and work. 5, capital transfer. So these are the transactions which are mentioned in balance of payment. The first is visible items. Import and export of goods is mentioned in the visible items. If export is done, in that case inflow of foreign exchange would be there, and if imports are done, in that case outflow of foreign exchange will be done, and that will be mentioned in the balance of payment. Similarly, if the same thing happens with the services, import and export, that is also mentioned in the balance of payment. Unilateral transfers are also known as one-sided transaction, because there is nothing in return when this type of transactions are done. For example, gifts given to some country or donations given to some other country, in that case no double transactions are done, as in the case of visible and invisible. Here exports will be done, and in return inflow of foreign exchange is there, but here there is only single transaction. Number 4, income from investment. If any businessman from India has done any investment abroad, and from there if he is getting any income, that is inflow of foreign exchange, that will be mentioned here. And last is capital transfer. Capital transfer relates to capital receipts and capital payments. Now capital receipts and capital payments are related to those things which affect the assets and liabilities of the government. One more thing, when we talk about visible items, we also consider visible items as balance of trade. So if the question is about what is balance of trade, balance of trade includes only visible items, imports and exports of visible goods.
In that case, it would be termed as balance of trade. So when we talk about the difference between balance of trade and balance of payment, you can say that in balance of trade only visible items are recorded, but here balance of payment में we record visible items, we record invisible items, we record unilateral transfers, income from investments, and capital transfer is also recorded. You can also say that it is incomplete record of transaction and it is complete record of transaction. It gives a narrow concept or narrow understanding, and it gives a wider understanding. Balance of trade is the part of balance of payment, and balance of payment covers the balance of trade. Now our next topic is about components of balance of payment. And there are two components of balance of payment: current account and capital account. When we are talking about these four things, visible, invisible, unilateral transfer, and income from investment, these four things, we consider them as the component of current account because they do not affect the assets and liabilities of the government. But when we talk about capital transfer, it is component of capital account. So there are two components: current account and capital account, and in current account these four things will be there. So now there are two components of balance of payment: current account and capital account. In current account, as we have seen, these are the four things: export and import of visible goods. Let's talk about this thing. If export is done, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, एंड जब भी इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. Similarly, if imports are done, then there is outflow of foreign exchange, and outflow of foreign exchange will be recorded on the debit side. Here, next topic, import and export of invisible goods. Same here, अगर imports होते हैं तो foreign exchange outflow होगा, and export होता है तो foreign exchange inflow होगा. Next is unilateral transfer. If we have given certain gifts and donation to some other country, that is payment. अगर हमने किसी को दिया है, Indian government has given something to some other country in the form of gifts or donations, that is payment. It is outflow of foreign exchange. And if someone else or some other country has given the same to us, gifts or donation in the form of, then that is receipts. Last is income from investment. अगर इंडियन बिजनेसमैन ने बाहर का इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से जो इनकम होती है दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज वो इनफ्लो है. सिमिलरली, अगर बाहर के कंट्री के किसी बिजनेसमैन ने इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ से उसको इनकम हो रही है तो दैट इज़ आउटफ्लो फॉर अवर कंट्री एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. ना करंट अकाउंट में कुछ इनफ्लो साइड रिकॉर्ड होगा, कुछ आउटफ्लो साइड रिकॉर्ड होता है. सो करंट अकाउंट में या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा. करंट अकाउंट में सरप्लस कब होता है? व्हेन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ मोर देन आउटफ्लो, तो उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो सरप्लस में है. एंड वो डेफिसिट में कब होगा? जब इनफ्लो कम है एंड आउटफ्लो ज़्यादा है. तो कह सकते हैं कि करंट अकाउंट है वो डेफिसिट है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट मीन्स हियर only those transactions will be recorded which affect the assets and liabilities either of the government or of the resident of the country. ट्रांजैक्शन जो यहाँ होता है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं. नाउ कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट टॉपिक दैट इज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग. नाउ अगर हमारी कंट्री ने कहीं से बोरो किया है या किसी और कंट्री ने हमसे बोरो किया है तो in that case it will affect the assets and liabilities either of our country or of the other country. That will be recorded in the capital account. Now borrowings, maybe there are two subtopics, that is private transaction
and official transaction. Private transactions and official transactions. Now, what is private transaction? See, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ने बाहर की कंट्री से अगर कुछ पैसा लिया हुआ है, कुछ पैसा बोरो किया हुआ है, तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन कहलाता है, बिकॉज द ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है? प्राइवेट सेक्टर के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए उसको प्राइवेट ट्रांजैक्शन में रखते हैं। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कब कहलाता है? जब यही चीज़ बोरोइंग्स गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर होता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। द नेक्स्ट इन हियर इज अबाउट इन्वेस्टमेंट. Now again there are two subtopics in investments: foreign direct investment, FDI, and portfolio investment. First of all, foreign direct investment. अगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी ने बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है एंड वहाँ पूरा कोई एसेट परचेज कर लिया है, जिसकी वजह से उस एसेट पे इंडियन बिजनेसमैन का पूरा कंट्रोल हो चुका है वहाँ पे, देन दैट केस इट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट गिव्स फुल कंट्रोल. यहाँ इंडियन बिजनेसमैन के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है. ओके, दैट इज़ FDI. लेकिन अगर इंडियन बिजनेसमैन ने बाहर के किसी बिजनेस में से कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट तो उसका हुआ है लेकिन कोई कंट्रोल उसका उस बिजनेस पे नहीं है. मान लो टाटा कंपनी ने अमेरिकन कोई कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, देन इन दैट केस इट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने अमेरिका में कोई पूरा एक एसेट परचेज कर लिया है, जिसकी वजह से उसका वहाँ पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. द लास्ट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको ऑफिशियल रिजर्व भी कहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी कंट्री के पास रिजर्व होता है वो उसका फाइनेंशियल एसेट होता है, एंड वो सेंट्रल बैंक के पास होता है. जब वो रिजर्व है उसमें एडिशंस होते हैं. मान लो रिजर्व फॉर एग्जांपल $5 लाख हैं और उसमें कुछ एडिशन होता है, जैसे $10,000 एडिशन होता है. ओके, देन दैट एडिशन ऑफ द रिजर्व इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट में से तो आउटफ्लो हुआ है, तभी तो रिजर्व में ऐड हुआ है. सिमिलरली अगर रिजर्व में से कुछ कम होता है, 5 लाख में से मान लो 20,000 कम हो जाते हैं, तो वो कम होकर कहाँ जाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाता है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इनफ्लो कहलाता है एंड वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है. नाउ अगेन कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है. कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा? सेम एज वाज इन द करंट अकाउंट. जब कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, देन दैट इज़ सरप्लस. एंड डेफिसिट कब होगा? व्हेन इनफ्लोज आर लेस एंड आउटफ्लो इज मोर, इन दैट केस डेफिसिट होता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स. जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, अगर वो प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोनोमस आइटम्स. अकोमोडेटिंग आइटम्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. ऑटोनोमस आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए जो किए जाते हैं, दे आर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर. लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स आर ओनली डन बाय द गवर्नमेंट. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उनसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता है. ऑटोनोमस आइटम्स जब होते हैं तो वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट होते हैं. ऑटोनोमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट. it has nothing to do with the balance of payment. मतलब
autonomous transactions are not done to बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ये सोच के नहीं किया जाता है कि उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस होगा, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्यों किए जाते हैं? टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता है, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। इसलिए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर नॉन एज डिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में इनफ्लो ज़्यादा है तो ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस उस हिसाब से काम करेगा। एंड autonomous transactions are known as above the lines and these are known as below the lines. Now our last topic here from this chapter is disequilibrium in BOP. Disequilibrium in BOP. बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब when the inflow is more than outflow, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डेफिसिट होता है, इट मीन्स जब आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में ही होता है। अब देखते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, कोजेस क्या हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया है उसके रीजंस क्या हैं। नाउ देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में आता है। एक है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है पॉलिटिकल फैक्टर एंड द थर्ड इज सोशल फैक्टर। इन 3 फैक्टर की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है ना। इकोनॉमिक फैक्टर में कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सी डेवलपिंग कंट्री को डिपेंड होना पड़ता है डेवलप्ड कंट्री पे। अब अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री में से कुछ इंपोर्ट करती है तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज डिसइक्विलिब्रियम, बिकॉज इंपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज तो उनको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, तो दैट इज़ डेफिसिट इन दैट केस। लेकिन यही चीज़ अगर डेवलप्ड कंट्री के लिए देखने जाए तो उनके पास पैसा आता है, तो इट इज़ इनफ्लो फॉर देम, इट इज़ सरप्लस सिचुएशन फॉर देम, बट स्टिल उनकी कंट्री में भी डिसइक्विलिब्रियम ही कहलाएगा, चाहे सरप्लस हो या चाहे डेफिसिट हो, डिसइक्विलिब्रियम ही रहता है ना। इन्फ्लेशन, मान लो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में है तो चीज़ों के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो दूसरी कंट्री से वो गुड्स लेना इजी रहता है, चीपर रहता है देन वी इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, बिकॉज हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है। देन अगेन वी नीड टू पे, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, डेफिसिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो वहाँ चीज़ें कॉस्टली है, देन दे विल इम्पोर्ट फ्रॉम अस, में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इन बोथ द केसेस डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। द नेक्स्ट इज अबाउट ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब मार्केट के फेस। अगर मार्केट का फेस बूम है, द प्रोडक्शन इज डन एट इट्स पीक, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा है, हम सरप्लस साइड हैं, अगेन डिसइक्विलिब्रियम। मान लो अगर रिसेशन चल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम सम अदर कंट्री, इन दैट केस वी आर ऑन अ डेफिसिट साइड, सो अगेन डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर हमारी कंट्री में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, हमें एक्सपोर्ट करना होगा, बिकॉज द प्रोडक्ट इज चीपर। In that case there will be inflow, we are on the surplus side. Next is import substitute. First of all,
लेट्स अंडरस्टैंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट है क्या. इट मीन्स जो गुड्स हम दूसरी कंट्री से पहले इंपोर्ट करते थे उसे इंपोर्ट ना करके वैसा वाला ये गुड्स अब हमें हमारी कंट्री में बनाना है. दैट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट. मानो अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट हो जाता है तो हमें अब दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट विल सेव ओवर फॉरेन एक्सचेंज एंड वी विल बी ऑन अ सरप्लस साइड. यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट नहीं होता है, तो हमें एज यूजुअल दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे. In that case, outflow of foreign exchange will be there and we are on a deficit side. So again, there is disequilibrium in balance of payment. So these are the 5 topics under economic factor. Now, political factor में there are 2 points. First is political instability. मान लो हमारी कंट्री में political instability है, गवर्नमेंट चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, तो बाहर के बिज़नेस इंडिया में बिज़नेस करने में हेजिटेट करेंगे. बिकॉज अगर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो बिज़नेस करना भी डिफ़िकल्ट होता जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है देन बाहर का पैसा यहाँ ज़्यादा आएगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा. इन दैट केस वी विल बी ऑन अ सरप्लस साइड. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. मान लो अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इंपोर्ट को फेवर करती है, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है. वी आर ऑन ए डेफिसिट साइड. यहाँ तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट को फेवर करती है, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा. वी आर ऑन अ सरप्लस साइड. नाउ द लास्ट फैक्टर इज़ द सोशल फैक्टर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इज़ demonstration effect. Demonstration effect. If the people of the country prefer to have the goods from the advanced country, अगर advanced country का goods हमारे इंडियन सिटीजन्स को चाहिए तो वो वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, इसकी वजह से वी आर ऑन ए डेफिसिट साइड. लेकिन अगर लोग यहाँ का ही प्रोडक्ट, इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, देन इन दैट केस वी आर ऑन अ सरप्लस साइड. नेक्स्ट इज अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस. लोगों का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंटरनेशनल मार्केट में है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ना खरीद के इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मूव होगा, आउटफ्लो होगा. सो वी आर ऑन ए डेफिसिट साइड. लेकिन अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही डिमांड है, नेशनल प्रोडक्ट की डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई जाना चाहता नहीं है, देन वी आर ऑन अ सरप्लस साइड. लास्ट पॉइंट इन दिस इज क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिसेस. दो कंट्री के बीच में अगर रिलेशंस अच्छी नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इफ़ेक्ट होगा. इसका हो सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिलेशन किसी कंट्री के साथ सही नहीं है और हमें वहाँ से गुड्स को इंपोर्ट करना हो रहा है, देन वो इंपोर्ट्स हमें महंगे लगेंगे, एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स होंगे. सो इन दैट केस वी आर ऑन ए डेफिसिट साइड. और एल्स टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ द रिलेशंस आर गुड एंड we import the goods from them, then that would be cheaper. So we are a little bit on a safer side. So in both the cases, चाहे surplus हो या deficit हो, there is disequilibrium in balance of payment. So these are the topics under the chapter balance of payment. I hope at the end of this session you are clear with the topic of balance of payment. The chapter is very easy. You can easily get full marks if the question is from this chapter. Thank you everyone.